Good morning students. Today we are starting unit 15 line graph. देखो पहले हमने बार ग्राफ हिस्टोग्राम जैसे किए, इस बार ये लाइन ग्राफ है. दिस इज एक्स एक्सिस और यहाँ जो सीसा होता है और ये होता है वाई एक्सिस जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं. ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन 0 0 इसकी वैल्यू है. जो ये इन्होंने ऐसे कट किया है दिस इज किंक. जब हमें ग्राफ को स्क्वीज करना है, देखो 34 35 36 यानी हमने दो स्केयर्स जो हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है. लेकिन अब यहाँ पे दो जो है सीधा ही 34 आ रहा है, तो उसको छोटा करने के लिए हमने इसको कहते हैं किंक. ये किंक यहाँ पे बनाया है. तो अब यहाँ से स्केल जब एक बार शुरू कर दिया, ये बिल्कुल सेम चलना चाहिए. 2 स्केयर्स 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के इक्वल है. और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, टाइम, कि डिफरेंट टाइम्स पे क्या क्या टेम्परेचर रहा. लाइक 9 पे 35 और 36 के बीच में मीन्स 35.5 डिग्री सेल्सियस. इज इट क्लियर? अब देखिए हम कैसे ग्राफ को पढ़ेंगे. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी hour. Now the temperature of a patient is given. What was the patient's temperature at 1 p.m.? So first find out 1 p.m. This is 1 p.m. and we have to find temperature. See this. This is the temperature at 1 p.m. Now taking scale this side. What is this? 36 and between 36 and 37. So 36.5 degree Celsius. Always write unit also. Now when was temperature? 38.5 degree Celsius. Now temperature is given and we have to tell the time. Now 38.5 means between 38 and 39. 38.5. This is, and now bringing your scale vertically, make it stand like this. So what is this? 12 noon. So temperature at 12 noon was 38.5 degree Celsius. Now C part, the patient temperature was same 2 times during the period given, and where were the 2 times? See here, in these 2 times the temperature is same, that is 36.5. and what is the time? Seeing vertically 1 and this is 2. At 1 and 2 p.m. the temperature was same. 1 p.m. and 2 p.m. the temperature was same, and that was 36.5 degrees Celsius. That also you may write in bracket. What was the temperature at 1:30 p.m.? How did you arrive at your answer? Now at 1:30 p.m. See 1:30. So between 1 and 2 you will get 1:30, and seeing this, and the temperature is same. So we get 36.5 degree Celsius. Now E part is during which period did the patient's temperature showed an upward trend. बेटा upward trend means कि एकदम से हाइक पे, कैसे, कौन से टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा. यहाँ पे 36 था 10 o'clock और एकदम से ही हाइक हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया at 11. From 10 to 11 the temperature height. Also in 9 to 10 थोड़ा बड़ा है but upward motion is there. Then 10 to 11 steep, बहुत ज़्यादा बड़ा temperature. Now it is coming down, temperature कम हो रहा है, so we will not consider this. But from 2 to 3 again the temperature is showing upward trend. So you will write 3 times 9 to 10 a.m., 10 a.m. to 11 a.m. and 2 p.m. to 3 p.m. The temperature showed an upward trend in these 3 times. Now the next graph, the following graph, ये जो ग्राफ दे रखा है
shows yearly sales of manufacturing company. Now you have to tell the sales of different year 2002. So here year is mentioned and sales, first note down rupees crore, so you have to mention crore also. In 2002, bring your scale like this. Now this, seeing this is 4 crore. So in 2002 it is, first answer is 4 crore. Okay, now second, in 2006 this is the dot, so keeping it horizontally you will get it, this is the 8 crore. So in 2006 sale was 8 crore rupees. Now in B part it is asked about 2003, so your answer in 2003 this, so this is the sale. Now between 6 and 8, 7 crore. And in 2005 this was 10 crore. Compute the difference between the sales in 2002 and 6. Now 4 crore, 8 crore, 8 minus 4 crore. Never forget to write crore, 4 crore. Now in fourth part, in which year was the greatest difference between sales as compared to previous year? कि पिछले साल से, अगर यहाँ देखो in 2003 और 2 में कितना फर्क है, 7 minus 4, 3 करोड़ का. 2004 में तो पहले से कम ही हो गई, लेकिन फिर भी डिफरेंस इतना नहीं है जितना यहाँ पे है. सीइंग जस्ट द लाइन ग्राफ, बेटा आपने बिना कंप्यूट करे भी आप बता सकते हो. लाइन ग्राफ का यही फायदा होता है कि हमने जस्ट देखते ही पहचान लिया कि यहाँ एकदम स्टीप गया है, जैसे टेम्परेचर में हमने देखा था. तो 2005 में कितनी सेल थी, 10, और 2004 में कितनी थी, इट वॉज जस्ट 6. तो 10 माइनस 6 अगर देखें तो 4 करोड़ का डिफरेंस था सेल में प्रीवियस ईयर से. तो किस ईयर में ग्रेटेस्ट सेल का डिफरेंस था, इन ईयर 2005. Is it clear? Now in question number 3rd, for an experiment in botany, 2 different plants A, B were grown under similar laboratory conditions. The height are measured at the end of 3 weeks. The result are shown using the graph. जैसे आपने 7th में डबल ग्राफ किया था कंपैरिजन के लिए, एक ही ग्राफ पे दो अलग अलग चीजें बनाते हैं, ऐसे ही लाइन ग्राफ में भी डबल चल रही हैं. ये एक ए प्लांट के लिए हमने डॉटेड लाइन यूज की हुई है उन्होंने, और बी के लिए जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है. तो हर 3 वीक्स पे यहाँ पे हमने प्लांट स्टार्ट हुआ, यहाँ वर्टिकल जो है वाई एक्सिस पे हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, और एक्स एक्सिस पे वीक्स हैं. आफ्टर एवरी दे आर सेइंग कि 3 वीक्स का मेजरमेंट लिया. फर्स्ट वीक में दोनों की अलग अलग मेजरमेंट है, फिर सेकंड में दोनों की सेम ही मेजरमेंट थी और हाइट जो थी सेम थी, और फिर ये थर्ड वीक पे दे रखी है. इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. नाउ सी क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ हाई वॉज प्लांट ए. 2 वीक्स के बाद प्लांट ए की क्या हाइट थी, 3 वीक्स के बाद क्या हाइट थी. सेम वे प्लांट बी की हाइट पूछी है. नाउ सी सेकेंड वीक में प्लांट ए और बी दोनों की हाइट कितनी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेके चलो, 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर. ओके, और थर्ड वीक में प्लांट ए की हाइट है, दिस इज 9 सेंटीमीटर, और प्लांट बी की हाइट है 10 सेंटीमीटर. सो वी हैव रिटन आंसर. सेकेंड वीक दोनों का 7 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में प्लांट ए 9 और प्लांट बी 10 सेंटीमीटर. हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक. प्लांट ए थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ, 9 सेंटीमीटर हाइट थी और पहले कितनी थी, 7. तो 9 माइनस 7 कितना ग्रो हुआ, 9 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इसी तरह प्लांट बी सेकेंड से थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ, सो यू विल सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर.
मीटर। तो ग्रोथ जो थी दोनों की सेकेंड वीक में सेम थी, और फिर प्लांट ए 2 सेंटीमीटर बढ़ा और प्लांट बी 3 सेंटीमीटर्स ग्रो हुआ। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ग्रो मोस्ट? प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज्यादा कौन से वीक में हुई, और प्लांट बी की कम ग्रोथ किस में हुई? सो सी, प्लांट ए की कौन सी लाइन है? डॉटेड। यहाँ पे 0 से 2 मीन्स 2 सेंटीमीटर बढ़ा, यहाँ 2 के बाद सीधा 7 सेंटीमीटर बढ़ा, तो 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई सेकेंड वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक में उसकी ग्रोथ 2 सेंटीमीटर हुई। सो हमारी ग्रोथ कब ज़्यादा हुई? इस वीक में। और प्लांट बी जो है उसकी कम ग्रोथ कब हुई? देखो लाइन ग्राफ से ही पता चल रहा है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ी, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ी, और फिर 3 सेंटीमीटर बढ़ी। तो सबसे कम ग्रोथ फर्स्ट वीक में हुई, और ए की ज़्यादा ग्रोथ कब हुई? सेकेंड वीक में। तो हमने लिख दिया सेकेंड वीक, और प्लांट बी की ग्रोथ लीस्ट कब थी? फर्स्ट वीक। वेयर द टू प्लांट्स हैव सेम हाइट, तो दोनों हाइट कहाँ मिल रही थी? सेकेंड वीक में दोनों की हाइट सेम थी। नाउ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एक्चुअल और जो हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर है ऑन विच डेज। नाउ यू सी फोरकास्ट, ये इसे कहते हैं, देखो डॉटेड लाइन से फोरकास्ट का बना रखा है और स्ट्रेट लाइन से एक्चुअल टेम्परेचर क्या था, क्या हमने अनुमान लगाया और क्या एक्चुअल में था। ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। देखो यहाँ पे डॉट मिल गई, मीन्स दोनों लाइंस आके मिल रही थी। तो ट्यूसडे को जो था फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम था। यहाँ देखो फ्राइडे को भी जो फोरकास्ट किया गया और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम थे, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में यहाँ देखो, यहाँ भी दोनों मिल रहे हैं, मीन्स ऑन संडे। नाउ सी ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे द फोरकास्ट टेम्परेचर और ये टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम थे। वॉज what was the maximum forecast temperature during the week? फोरकास्ट हमारा है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ गया है? अप टू दिस 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। और मिनिमम एक्चुअल, एक्चुअल कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो सबसे नीचे स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है? ये, इससे नीचे कहीं स्ट्रेट लाइन का डॉट नहीं है। तो 2 दिन था, दैट इज थर्सडे और फ्राइडे को एक्चुअल टेम्परेचर कम रहा। और कितना था? सीइंग हॉरिजॉन्टली यू विल गेट 15 डिग्री सेल्सियस। आई हैव रिटन आंसर्स हियर। ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, कि जो फोरकास्ट किया गया और असली में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फर्क आया। यहाँ देखो दोनों हमने फोरकास्ट किया, 15 था, 15 और 20 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे सेम था ट्यूसडे को, वेडनेसडे को फर्क था, थोड़ा फर्क था, थर्सडे को यहाँ पे 1 2 ये देखो ये था कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। और फोरकास्ट कितना किया गया था? 20 और 25 के बीच में, 22.5 नियरली। फ्राइडे सेम था, यहाँ भी देखो सिर्फ इतना सा फर्क है, तो एक बॉक्स का फर्क आ रहा है। तो जस्ट देखने से ही, एग्जैक्ट नहीं भी देखो तो दोनों में थर्सडे को बहुत ज़्यादा फर्क है। सो वी विल राइट हियर on which day there was difference in forecast and actual temperature, that is Thursday. So in this way you will complete question 1 to 4 of 15.1. Thank you.